ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ, ਐਮਏ ਪੱਧਰ ਇਹਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਏ ਪੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਏ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਐਮਏ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲਾਵਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਸਰਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਰਚਦੇ ਨੇ ਪਈ। ਹੋਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਮਧੁਰਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ, ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਿੱਧੜੇ ਲੋਕ, ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਵਰਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਲ ਚਿੱਤ, ਸਾਦਾ ਚਿੱਤ, ਸਾਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਈਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ।
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਜ਼ਬਾ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਆ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀਓ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਗੀ ਬਈ। ਤੇ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਮੌਖਿਕਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੱਤ ਕਰ ਲੈ। ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੌਖਿਕ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਇਹਦਾ प्रकृति के जी है, इनका नेचर की जाए। प्रकृति मौखिकता, मौखिक होंदी है भैया। लोक साहित्य का संचार मौखिक रूप दे विच हुंदा है। गां तो गां आपां सिੱਖੀ तुरी आने आ। लोक प्रवानगी, जिहड़ा जन समूह है इहनूं प्रवानगी दिंदा है। वो प्रवानगी राही पीढ़ी दर पीढ़ी अगे नूं चलदी है भाई। लोकां दी प्रवानगी जरूरी है। लोकां ने जे बहिष्कार करता वो नहीं गई तो फिर वो लोक साहित्य नहीं बन सकेगा। लोकां दी प्रवानगी जरूरी है तो लोक प्रवानगी। अगे परंपरागत, परंपरागत होंदा है भाई। परंपरा तो वो लोग जेड़े कि कोई भी गांदे है, बोली गांदे है, सुहाग, घोड़ी, कीरना, अलाउणी, कुछ भी, ये परंपरा तो उन्होंने प्राप्त हुई है। और ये आम लोग वधेरे रूढ़ीवादी ते परंपरा पूजक होंदे ने। ठीक है। रूढ़ हो चुकी जिहड़ी है उसी नूं परंपरा कहा जाता है। भाई कोई चीज रूढ़ हो चुके वो फिर परंपरा बनती है। लगातार बार बार उसका दोहराव होएगा, फिर वो परंपरा बन जाएगी। लोक मन की अभिव्यक्ति पई। लोक मन की अभिव्यक्ति, ये लोक मना की अभिव्यक्ति है भाई। लोक मना के अंदर बसिया हुआ है, वो अपने विचारों को प्रगट कर रहे हैं। तो इस कारण लोक मना की अभिव्यक्ति। वैसे इन्हां बारे पूर्ण विस्तार नाल आपां जदों लोकधारा दा अज सवेरे टॉपिक कराया सीगा, उस दे विच हर एक दे उत्ते विस्तार नाल चानना पाया गया है भाई। तो तुसीं होर विस्तार नाल देखना चाहते हो तो उत्थे जाके उस वीडियो के अंदर वेख सकते हो। इत्थे आपां थोड़ा शॉर्ट चला रहे हैं। फिर लोक साहित्य का संचार भाषा या उपभाषा राही। इनका संचार की है? भाषा राही भी हो सकता है, उपभाषा राही भी हो सकता है। कोई भी उपभाषा हो सकती है, मलवई, माझी, दुआबी, लहंदी, पोठेहारी, किसी भी राही इनका संचार हो सकता है। कलात्मक पक्ष है जिहड़ा लोक साहित्य के सिरजक अपने भूगोलिक, आर्थिक ते सभ्याचारक अनुभवों को बड़े ही कलामी ढंग नाल पेश करते हैं। कलात्मक पक्ष है, हर एक चीज पहला बोली जाएगी, बोली जदों बोली पाई जाएगी खास कलाकारी होगी। घोड़ियां, सुहाग जदों गाए जाएंगे उनका कलात्मक पक्ष हो रहा है। जदों कीरना, अलाउणी पाई जाएगी उदों उनका कलात्मक पक्ष हो रहा है। हुण लोक साहित्य का जिहड़ा सिरजक है वो एक अज्ञात व्यक्ति हुंदा है भाई। तुसीं नहीं कह सकते फलानी बोली फलाने लिखी है, या ये जिहड़ी घोड़ियां वाला है, घोड़ी गीत है या सुहाग का गीत है, ये फलाने बंदे ने लिखे नहीं। हाँ, इवें हो सकता है कि किसी टाइम, किसी समय किसी बंदे ने लिखता हो, परंतु उनके बारे थो टकाना नहीं है भाई आ गीत है या ए लोक काव्य रूप है, इस बंदे ने ही लिखा है, इस बारे कोई निश्चितता नहीं है। और फिर गां अगे तो अगे जैवे जैवे वो लोक काव्य रूप आ रहे ने, लोग अपने हिसाब नाल उनदे विच थोड़ा जा बदलाव कर देंदे ने। कईयां च बदलाव हुंदा है और कईयां च नहीं हुंदा। उनके बारे आपां अगे जानकारी लवांगे। तो इहदा जिहड़ा सिरजक हुंदा है वो अज्ञात व्यक्ति हुंदा है, उनका कोई पता नहीं हुंदा कौन है।
और इसी कारण इसनूं किसी खास व्यक्ति के नाम नाल नहीं जोड़िया जाता। इहदा जिहड़ा है समाज की लोक प्रवानगी है जो इसनूं अगे लेके आउंदी है भाई, कोई खास सिरजक कहता नहीं है। रूपक वन सुवनता, इहदे जिहड़े वन सवन्ने रूपक है भाई, वन सवन्ने रूपक है वख वख किहड़े किहड़े, जिवें लोक काव, लोक नाटक, बुझारता, मुहावरे, अखाण, चुटकले, घोड़ियां लाउणियां, बहुत कुछ, ये सारे इहदे वन सुवंता है, अड अड रूपक ने इहदे। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ प्रकृति की गल जिंदे विच आपां पढ़िया मौखिकता, लोक प्रवानगी, परंपरागत क्योंकि परंपरा तो संबंधित है, लोक मना की अभिव्यक्ति क्योंकि लोक मना की अभिव्यक्ति है, लोक साहित्य का संचार भाषा या उपभाषा राही हो सकता है, कला पक्ष बारे आपां जानकारी लित्ती है, रूपक वन सुवंता, वन सवन्ने रूप सी उन्हां बारे आपां थोड़ा जिहा बिल्कुल दसिया और अगे विस्तार नाल इहदे बारे चर्चा करांगे वर्गीकरण दे अंदर, और इहदा सिरजक है कोई खास व्यक्ति नहीं हुंदा। हुण अगे आपां गल करदे हां लोक साहित्य दा वर्गीकरण, जिहड़ा कि अपना बनदा टॉपिक है लैक्चरर दे अंदर, दे वर्गीकरण ते चालना पाओ। जे आपां वर्गीकरण करिए तां काफी वड्डा इहदा वर्गीकरण है और उसी नूं ध्यान विच रखदे होए वर्गीकरण किया गया है भाई। इहदा वर्गीकरण करिए तां इहनूं कई भागां विच वंडिया है भाई। पहला है लोक काव, लोक काव बारे पढ़ांगे और उसका गांह वर्गीकरण भी देखांगे। लोक कहानी, लोक कहानियां बारे पढ़ांगे और उनका भी वर्गीकरण करांगे। लोक गाथा, बुझारता, ते अगला है अखाण, मुहावरे, लोक सियाणपा। इहनूं आपां एक ही टॉपिक दे अंदर लै लिया, कई किताबां च इहनूं अगे अगे अलग अलग वंडिया, कईयां नूं एक च। आपां नूं पर ध्यान होना चाहिए कि इहदे वर्गीकरण है जिहड़ा लोक साहित्य का वर्गीकरण है वह किस प्रकार किया गया है। लोक काल, लोक कहानियां, लोक गाथा, बुझारता, ते अगला है अखाण, मुहावरे, लोक सियाणपा। यह वर्गीकरण किया गया है। हुण आपां गल करदे हां वणजारा बेदी ने, सब तो पहला हुण आपां गल करदे हां लोक काव दी। एक एक करके सारियां दी गल करांगे, पहला लोक काव दी, फिर कहानी दी, गाथा दी, फिर अखाण, मुहावरे, बुझारता, लोक सियाणपा, उन्हां बारे आपां गल करांगे। सब तो पहला यह टॉपिक आपां चक रहे हैं। हाँ, तो इस चीज ध्यान रखियो भाई, वर्गीकरण है उसनों पहला इन्हां भाग्यां विच वंडिया गया है भाई, लोक काव, लोक कहानी, लोक गाथा, बुझारता, अखाण, मुहावरे, लोक सियाणपा। हुण आपां पहला वर्गीकरण का जिहड़ा हिस्सा है लोक काव, ओनूं लिता है भाई, उसनूं लिता है, उसनूं आपां शुरू करन जा रहे हैं। लोक काव, लोक काव विच गीत बनतर दे गुण हुंदे ने। कई लोग लोक काव दे अंदर लोक गीत नूं शामिल करते हैं, परंतु लोक गीत दे अंदर लोक काव शामिल नहीं है। लोक काव शामिल नहीं है भाई। लोक काव दे अंदर लोक गीत आवेगा, परंतु लोक गीत दे अंदर लोक काव नहीं आवेगा। कई बार कई जिहड़े लिखारी ने उन्होंने लोक काव नूं लोक गीत मन लिया है, कईयां ने मनिया है और कई किताबां च लिखा कि लोक काव लोक गीत वरत लिया, फिर उनका गांह वर्गीकरण करता भाई। ठीक है, वो आप क्वेश्चन देख लांगे, लोक काव रूप आंदा, लोक गीत आंदा, जो भी आंदा है। परंतु जिहड़ी पंच लाइन सी मैं तुहानूं दसती कि जिवें आ घर है, इस घर विच मैं रहना, परंतु मेरे विच एक घर नहीं रहिंदा, मेरे नाल होर भी लोग है भाई, मेरे बच्चे है, माँ प्यो है, सब है। तो इसी तरीके नाल जिहड़ा लोक काव है उनका एक हिस्सा लोक गीत है। यह है जिहड़ी नचोड़ है, सिट्टा है। परंतु कई लोग की मनते ने कि लोक गीत नूं लोक काव मन लेंदे ने, पर लोक गीत लोक काव का एक महत्वपूर्ण ते बहुत प्रसिद्ध रूप जरूर है। अपने कुछ निवेकले लक्षणों के कारण समुचे लोक काव नूं लोक गीत कहना ठीक नहीं है। लोक काव की उत्पत्ति संबंधी वणजारा बेदी का जिहड़ा विचार है उसनूं आपां दस दिंदे हैं। आदम काव जदों अध वैदिक युगां दे विच, पुराने युग के अंदर संस्कार त्याग के मानव मुख होके हरख, सोग ते जज्बे व्यक्त करन लग्या, तां लोक काव दा उदय होया। आपां जज्बे व्यक्त करदे आ,
कोई मर गया तो रोन लग जाने हैं, जो रोंदे तो एक खास लोक काव्य रूप है कीरना, अलाउणियां। विआह का कारज होंदा है तो अपना जो सुभाव है, मनुखी व्यवहार है, वो तरह तरह के व्यवहार करता है। कदे आप जागो कढ़ते हैं, कदे घोड़ियां, कदे सुहाग वगैरह। तो घोड़ियां सुहाग वगैरह ये जिहड़े गीत ने लोक काव्य के अंदर आते हैं। यह परंपरा भावें पेतले रूप में आदम काव्य के नाल नाल ही तुरदी आ रही है, पर मनुख के मानसिक ते सांस्कृतिक विकास लई इस काव्य ने वखरा स्वरूप धार लिया है, जिस नाल काव्य का पसारा जीवन के आर पार मानसिक ते बौद्धिक दिशावां दे विच फैल गया है। भाई लोक काव्य वणजारा बेदी की कहंदा हुण ये जिहड़ा लोक काव्य है, वणजारा बेदी साहब की कह रहे हैं कि उन्होंने लोक काव्य नूं 3 भागां च वंडिया है। किंदे विच? संस्कारक, मनोरंजन ते धार्मिक काव्य। संसारक काव्य, मनोरंजक काव्य ते धार्मिक काव्य, ये वणजारा बेदी ने लोक काव्य नूं 3 भागां च वंडिया है। ठीक है, जे क्वेश्चन अंदर लोक काव्य की जगह लोक गीत आ जाए और वणजारा बेदी आ जाए और थले आ ही दिता होवे तो आप आही कर देना है भाई। ठीक है, तुसी एक ध्यान रखनी है गल, क्योंकि कई लोग की है कि उन्होंने मान लेंदे। ठीक है जी, हुण अगे चलती है। नार सिंह, नार सिंह ने बड़े भाई बोलियां गीत वगैरह इकट्ठे किए हैं। नार सिंह ने जो वर्गीकरण किया वो इस प्रकार किया है। 1 नंबर खुले काव्य रूप और दूजा बंद काव्य रूप। खुले काव्य रूप जिन्हें खुलापन हो भाई, कोई आप फेरबदल कर सकते हैं। बंद काव्य रूप जिन्हें फेरबदल संभव नहीं है, वो बंद काव्य रूप है। पहला गल करेंगे खुले काव्य रूप, फिर भाषा बारे चर्चा करेंगे। खुले खुले काव्य रूप की है कीरना, टप्पा, अलाउणियां, छंद परागा, निक्की बोली, लम्मी बोली, सिखड़ियां, खेड़ गीत ते नाच गीत आते हैं। बंद काव्य रूप या बजवा काव्य रूप जिन्हों आखते ने, उनदे विच बुझारतां, अखाणा, मुहावरे, लोक सियाणपा, घोड़ियां, सुहाग जिहड़े है आ बजवे जिहड़े लोक काव्य रूप है उस दे अंदर आउंदे ने। फिर उस बाद जसविंदर सिंह ने जिहड़ी वंड कीती है, जसविंदर सिंह की कहता है इन्हें 3 भागां च वंडिया लोक काव्य रूपां नूं, 3 भागां च वंडिया इसने बई। नार सिंह ने वंडिया 2 भागां च, जसविंदर सिंह ने वंडिया 3 भागां च। प्रागीतक लोक काव्य, वृतांतिक लोक काव्य, अर्ध वृतांतक लोक काव्य। लोक काव्य के वर्गीकरण के अंदर आपां नूं इह चीज ध्यान रखनी पवेगी भाई किसने वर्गीकरण किवें कीता है। फिर अगे जाके कईयां ने लोक गीतां दा वर्गीकरण किया है, उन्हां दे उत्ते भी आपां चानना पावांगे। परंतु एक बार आपां चानना पाया है लोक काव्य दे वर्गीकरण के बारे। वणजारा बेदी ने 3 वर्गीकरण किया भाई, संस्कारक, मनोरंजक ते धार्मिक। नार सिंह ने खुले काव्य रूप ते बंद काव्य रूप 2 वंडे है भाई, और जसविंदर सिंह ने 3 प्रागीतक लोक काव्य, वृतांतक लोक काव्य ते अर्ध वृतांतक लोक काव्य आ है जी। हुण की करते हैं कि आपां लोक काव्य रूपों के बारे चर्चा करने तो पहला आपां जिहड़े खुले खुला काव्य रूप है और बजवा काव्य रूप है इस बारे में थोड़ा तुहानूं दसदा। खुला काव्य रूप जिहड़ा है वो वध लचकीला हुंदा है, इस विच पुनर सिरजना की प्रक्रिया हो सकती है। इस तरह इको काव्य रूप विभिन्न पाठां ते रूपांतरां विच प्रचलित हो जाता है। और जे मैं काफी कुछ बोलने की बजाय जे मैं सिर्फ 2-3 सत्रों के विच आ गल कह दवां कि खुला काव्य रूप खुला हुंदा है, इस विच फेर बदल की संभावना, वाधा घाटा आपां कर सकते हाँ, आपां कुछ चीज़ां जोड़ सकते हाँ, हटा सकते हाँ। ये अपने हक विच है। जदों भी इस्त्रियां ये चीज़ां गाउंदियां खुले लोक काव्य रूप की वरतों करते हैं तो उदों इस तरीके का बदलाव वो कर लैंदियां ने। जिवें कोई भी कीरना पाऊगी, कोई मर गया गई कीरना पाण गई तो उहदे चों फेर बदलाव कर सकती है, टप्पे विच भी कर सकती है, अलाउणियां दे विच छंद परागे विच फेर बदलाव हो सकता है। बजवा काव्य रूप, बजवा काव्य रूप एक अजिहा लोक काव्य रूप है जिंदी पुनर सिरजन की प्रक्रिया मध्यम होंदी है ते बजवे नियमां अधीन ही होंदी है। एवें नहीं कि अपना चलो जी किता ओनू आपां
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਿਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕੀਰਨਾ, ਟੱਪਾ, ਅਲਾਉਣੀਆਂ, ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ, ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਸਿੱਖਣੀ, ਸੁਹਾਗ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। हर कोई भी लोक काल रूप के बारे में पूछा जा सकता है। जो उन्हें वर्गीकरण की गल करती है तो वर्गीकरण के अंदर आ सकता है। तुम एक बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, या जो हम लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देखेगा, एक बार तुम देखोगे तो तुहानू सारे जो काल रूप है वो याद हो जाएंगे। कोई इन्ने औखे नहीं है। तुसी इनका लाइव टेलीकास्ट है वो वेख्या हुआ है, क्योंकि आप जिथे भी समाज के अंदर रहने बई, जो बंदा समाज के अंदर रहिंदा है तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने होंदियां ने। जिवें कि आपां गल करिए पहला कीरना, कीरना सोगमई काव्य रूप है, मृतक संस्कार नाल संबंधित है। जब व्यक्ति की मौत हो जाए तो अकली इस्त्री जो रोंदी है, कुरलाउंदी है, तो उसनूं कीरना कहंदे। भैया कीरने पाई जाती है। जिवें वो कहंदी है, जिवें तेरे वर्गे गभरू भजे मौत नूं ढा नहीं देंदे वे मेरे शेर दे गल वाले पुत्ता। यानी रोंदी है और इत्थे पटा ते हथ मारदी है, इत्थे हथ मारदी है और इत्थे हथ मारदी है। ते वो कहंदी है जे तू पुत्ता जमया वे मां अपनी दी गोदी पुत्ता, प्यो दे आंगन ना बोलिया पुत्ता, हाय मेरी धी राणी है, हाय मेरे धी राजिया। जदों भी कोई जवान पुत्त है किसी का मर जाता है, जवान मौत हो जाती है, तो उस समय तुसीं वेखिया होवेगा जिहड़ियां जनानियां ने वो बड़ियां धां मार मार के, पटां ते हथ मार के, छाती ते हथ मार के, सिर ते हथ मार के, बड़ी ही एक एक जनानी है जिहड़ी वखरे तरीके नाल जदों वो रोंदी है तो उसनूं कीरना कहा जाता है। और अगला जिहड़ा अपना काव्य रूप है वो है अलाउणी। अलाउणी के अंदर की है बई, अलाउणियां अंदर भी सोग तो संबंधित है। भाई जदों भी कोई बंदा मर जाए, जदों भी कोई बंदा मर जाए तो पेशावर जिहड़ी नैन या मरासण होंदी है उन्होंने रोण लई बुलाया जाता है। राजस्थान के अंदर आ कारज है रुदाली जिहड़ियां होंदियां ने वो करदियां ने। अलाउणी के अंदर जिहड़ी रुदाली है स्यापाकार औरत है ते वो की कहंदी है कि अगे अगे वो पहला उच्चारण करती है वो जो मरिया होया बंदा है उस तो संबंधित उनके जिहड़े वीरत्व गुण सी, वीर तो संबंधित गुण सी भाई, उनके जिहड़े चंगे कारजां दे उत्ते उचारना पाती है और नाले वो धां मार मार के रोंदी है। और उनके पिछे जिहड़े उनके होर भाई कंपेनिंग वाले पिछे बंदे आए होंदे हैं वो पिछे पिछे रोंदे है, या फिर उसनूं स्यापाकार औरत नूं बुलाया जाता है, वो स्यापा करती है और उनके पिछे पिछे होर जिहड़े समूह है वो रोंदा है भाई पिछे। तो एक समूहिक गीत है भैया, जिवें कि जिहड़ी स्यापाकार औरत है वो कहेगी सोहनी छैल छबीली धीए राणीए, ते जिहड़ा समूह है वो फिर कहेगा हाय हाय धीए राणीए। फिर वो कहेगी स्यापाकार औरत तेरे लम्मे लम्मे वाल धीए राणीए, तो सारा समूह कहेगा हाय हाय धीए राणीए। रोंदे हुए करलांदे हुए आ जिहड़ी है नाले स्यापा पाते हुए बई और नाले स्यापा पाऊगी और नाले एवें करके ऐ करके ऐ करके एक्शन करूगी तरह तरह के। वो एक दुख दे विच वो एक्शन ने जो हो जाते हैं भाई, परंतु जिहड़ी स्यापाकार औरत है उसनूं बुलाया जाता है तो वो जिहड़ी खलारा पाती है ते उस नूं सारा इस अलाउणियां दे अंदर गिणिया जाता है। हुण एक मुद्दा यह बनता है कि कीरने ते अलाउणियां दे विच फर्क की है। सिंपल जी गल है भाई, जिहड़ा कीरना है वो अकली औरत पाती है। अकली औरत द्वारा सोग के समय
जो भी गैर पाए जाते ने वो कीरना है। अलाउणियां जो समूहिक रूप के लोग स्यापा पाते ने तो अलाउणियां होंदियां। इसके स्यापाकार औरत है वो कोई भी हो सकती है भाई, वो आवेगी और वो स्यापा पावेगी। जन समूह उनके पीछे है जो धीए धीए राणियां धीए राजा या कुछ भी जो मरे उस तो संबंधित वो पंक्ति उचारते हैं। इस तरीके आ जिहड़ा रोण वाला काम है वो चलता है। ये दोनों ही सोग गीत है भाई। हुण अगे गल करिए टप्पा। टप्पे तुसीं नौवीं दी जिहड़ी अपनी किताब है उहदे अंदर बड़े टप्पे दिते हुए भाई, तुसीं उत्थों टप्पे पढ़ सकते हो, परंतु मैं टप्पा तुहानूं दस देना है। वैसे तुसीं उत्थे पढ़ोगे चंगा चानना पै जाएगा। आने वाले समय के अंदर मैं भी जिहड़ा है वो करवावांगा और एक टप्पा है जिहड़ा आपां गा बजा के करांगे। टप्पा एक तुकी बोली नूं कहंदे। एक तुक वाली बोली एक हरी बोली है जिहड़ी उसनूं टप्पा कहंदे हैं। पर टप्पे दे अंदर बोली एक हरी है पर 17 दो ने। 17 दो ने इस कारण दो 17 होने करके इसनूं दो 17 टोट के भी आखिया जाता है। जो गिद्धे विच मुटियारा पाउंदियां ने, गिद्धे तो बिना भी साडे रोजाना जीवन विच काम धंधा करदियां टप्पे गाए जाते हैं। काम करते नौजवान आटा गुंदिया कटदिया धारा कटदिया दुध रिड़कदिया जो ये टप्पा है वो गाया जाता है। ते इस विच एवें भी हो सकता भी एक धिर जिहड़ी दूजी धिर नूं सुना के कह सकते, एक दूजे दे सामने संवाद भी है वो रचा सकते हैं टप्पे दे अंदर। हुण टप्पा है जिहड़ा आपां एक दो टप्पे जिहड़े मैं तुहानूं दस दिना है भाई। जिवें एक दूजे नाल संवाद भी हो सकता है। यार संवाद किवें होगा? जिवें मर्द बोलेगा बेरियां नूं बेर लगदे तैनूं कुछ ना लगे मटियारे। जिवें बेरियां नूं बेर लगदे तैनूं कुछ ना लगे मुटियारे। तो इस विच की हो गया कि एक तुक्की बोली है पर 17 दो ने। ते अगों स्त्री की दवार कहंदी है, स्त्री कहंदी है बेरियां नूं बेर लगदे मैनूं लाल लगन सरदारा। बेरियां नूं बेर लगदे मैनूं लाल लगन सरदारा, भी मेरे बच्चे होंदे आ। इस तरीके नाल ये जिहड़ा है आमो सामने का है। और एवें भी हो सकता है भी कल्ला ही की कहते हैं कि असिद्धे रूप में संबोधन होवे, उस विच सामने टक्कर वाला आदमी ना होवे तो असिद्धे रूप में भी संबोधन हो सकता है। एक दूजे के आमने सामने नहीं होंदे, कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं होंदा। पर जिहड़ा संबोधन ते असल विच टप्पाकार दा अपना अंदरला रूप है जिहड़ा उजागर करते हुए वो सीधा टप्पे का उच्चारण करती है। जिवें कि राहे राहे जाण वाली है मुंडा आप ते मुड़ंगा पैंदा बाप दा। आ है अगे हाका मार दे बकरियां वाले नी गोरीए रुमाल भुल गई। टप्पा है हाका मार दे बकरियां वाले गोरीए रुमाल भुल गई। ये भी टप्पा है। इस तरीके नाल ये टप्पे है जिहड़े वो बहुत सारे टप्पे अपने 9वीं क्लास के अंदर दिते हुए भाई, तुसीं उन्हां नूं ध्यान रख लिओ भाई। निक्की बोली, निक्की जिहड़ी बोली है दो तुक्का वाली बोली है वो निक्की बोली है। इसनूं दोहरे टप्पे भी कहते हैं। दोहरे टप्पे और टप्पा की है एक हरी बोली है दो 17 वाला, परंतु निक्की बोली है जिहड़ी दो तुकी बोली है। दो तुकी बोली दोहरे टप्पे इसके अंदर इसनूं आखिया जाता है। और दो 17 तो होणगी होणगियां बई। इस कारण कई बार हेरे दोहरे ते सिठनी दे नाल भी आ मिल जाती है, क्योंकि हेरे दोहरे ते सिठनी दे अंदर भी इस तरीके नाल वो भी निक्के रूप च हुंदे ने। परंतु आप सिर्फ निक्की बोली की गल करिए, निक्की बोली दो तुकी बोली होती है जिंदे दोहरे टप्पे होंदे ने। और इसकी वक्रता कारण यह वखरा काव्य रूप है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी दूजी तुक तक कोई प्रचलित तोड़ा होंदा है भाई। तोड़ा अंतम सत्तर होंदी है जिसनूं दूजी या तीजी वार दौरान पिछों बोली की विभिन्न गतिशील उचार जिहड़े ने विच गा के उसके भाव नूं संघना किया जाता है। होर संघना जिहड़ा भाव की है होर संघना हो जाता है। जिवें वारी वरसी खटन गया सी खट के की लैंदा। आ जिहड़ियां बोलियां ने उस तो अगे अंब दी टाणी तोता बैठा अंब पकड़ ना देवे सोहनी भाबो नूं दिओर वसण ना देवे। एक है निक्की बोली है। चिटिया दंदा ते फिरंगी बरेती डूंगे पै गए घासे 12 बरसां दिया तेनू वेद की आखे। इस तरीके नाल जनानियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तरीके नाल भाई बोलियां पांदियां भाई। निक्की बोली है जिहड़ी वो पांदी है, फिर वो नचदियां भी है भाई।
ठीक है, नसदियां और वो इस तरीके अगे है जो सिस्टम है चलता रहता है। हुण गल करिए लम्मी बोली की। लंबी देखो निक्की बोली निक्की होंगी है, लंबी बोली लंबी होंगी है, बस इन्ना ही फर्क है। लंबी बोली थोड़ी लंबी हो जूगी, निक्की बोली निक्की हो जूगी। सार रूप अगर आप देखिए तो पंच लाइन सी भाई निक्की बोली निक्की है, लंबी बोली लंबी है। लोक काव्य का अंत हरमन प्यारा है भाई, इसनूं पूरे रंग विच गाउंदे मुटियारा किसी ब्याह शादी के समय ही देखिया जा सकदियां ने। किसी पेंडू मेले के उत्ते कई बार औरतां नाल गभरू भी गा के रंग बंधे ने। लम्मी बोली जां गिद्धे दी बोली नूं केवल इक्को कुड़ी बोलदी है, उस वेले बाकी दीयां कुड़ियां चुप करके खड़ियां खड़ियां रहिंदियां ने ते ताड़ियां मारदियां रहिंदियां। बाकी जब वो कुड़ी अखीरली तुक ते पहुंच जाती है, उस समय सारियां ही कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਈ ਨੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ लम्मी बोली है। लम्मी बोली सम तुकां तक तुक्का वाला अजिहा गीत रूप है जिसकी हर तुक अपने थावे संपूर्ण ठिमक इकाई हुंदी है ते अंत विशेष तोड़े उत्ते हुंदा है, जिस तोड़े का भाव ते उचार दोहां पक्षां दी बोली दे विच कंगरोड़ हुंदा है। और बोली दियां तुकां व्यक्तिगत ते तोड़ा समूह सभा दा लखाएक है। तोड़ा समूह सभा दा लखाएक है, अंत च तोड़ा हुंदा, फिर सारा जिहड़ियां जनानी है वो तोड़े नूं चक लैंदियां भाई, अंतली तुक नूं चक लेंदियां ने। फिर भैया एक जो गीत है वो शुरू हो जाता है, लंबी बोली है शुरू हो जाती है। जिवें कि मेहंदी 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 हर कोई कहंदा, हर कोई कहंदा मेहंदी बागां दे विच सस्ती मिलदी, हटियां ते मिलदी महंगी, उत्ते सोठा हेठा कुंडा भार दोहां दा सहंदी, कोट कोट मैं हथ ना लाउंदी, फोलक बन बन लैंदी, मेहंदी शगना दी धोतिया बाज ना लैंदी, मेहंदी शगना दी धोतिया बाज ना लैंदी। अखीर दे विच अखीर तुक है भाई वो। ते इस तरीके नाल बड़ियां बोलियां जिहड़ियां है ने वो पाईयां जांदियां ने। मैं इन्ना कोई महारथी नहीं है इस कंसैप्ट दे अंदर, परंतु फिर भी मैं उसमें एक साधारण तौर पे तुहानूं दसदा है इस तरीके नाल। परंतु जिहड़ियां मुटियारां ने और जिहड़ियां विआह दे मौके ते गाउंदियां ने वो बड़ा ही सोहणे तरीके नाल गा लैंदियां ने भाई। हेरा एक निरोल मलवई काव्य रूप है। निरोल मलवई काव्य रूप हेरा, इनू हेरा भी कहते ने। काम उत्तेजना, अर्थ है काम उत्तेजना। हेरा हेरा तो बनया शब्द है और इनके शाब्दिक अर्थ कई विद्वान करते हैं। काम उत्तेजना इस विच एक मुटियार संबोधनी शैली राही दूसरी धिर नूं पैगाम भेजती है, जिहड़ा विआह नाल संबंधित वखरे वखरे मौकिਆਂ ते सवाणियां वल्लों उचारिया जाता है। विआह के मौके ते कई बार बई जीजा साली तो संबंधित भी हेरे है, या फिर कोई कुड़ी है किसी मुंडे नूं संबोधन करते हुए भी पैगाम भेजते हुए भी हेरा है वो गांदी है, तो उसनूं हेरा कहा जाएगा, ना कि बोली निक्की बोली वगैरह कुछ भी। हेरा विआह समय निश्चित उचार संदर्भ विच गाया जाने वाला रूढ़ हो चुकिया नेम और रूढ़ हो चुके नेम उत्ते ही उचारिया जाता है। दो सतरां वाला अजिहा संबोधनी गीत रूप है जिस विच हर ठहराव नाल संबोधनी हेक आउंदी है, पर सब तो वध लमकणी हेठ छेकलड़े शब्द ते छेकलड़े शब्द तो जिहड़ा पहला शब्द है दे अंतले वर्ण ते आउंदी है। छेकलड़े शब्द तो पहले शब्द दे अंतरला जिहड़ा वर्ण है उस दे उत्ते आउंदी है भाई। और हेरे दी जिहड़ी बाहरली दिख है निक्की बोली वर्गी है, परंतु इहदे विच निक्की बोली वांग ही इस दियां दोवें सतरां विच दो चित्र उगड़दे ने, पर अंदरली रचना निक्की बोली तो मूलों ही भिन्न है, क्योंकि इस विच पैगाम है। पैगाम है दूजी धिर नूं क्या है, काम उत्तेजना है थोड़ी जी। जिवें तेरा भी बोलिया मिंदिए लिख धरा नी कोई सज्जे कोल दे नाल, आउंदी जांदी झाड़दी नी कोई टुटे छित्तर ते गुस्सा जरा मत करी नी नाल नाल कर।
हुण इस की है कि अखीर दे विच कहंदे कि तेरा भी बेलिया निधिए लिख धरा ना कोई सज्जे कोल दे नाल आउंदी जांदी झाड़दी नहीं कोई टुटे छित्तर ते गुस्सा जरा मत करी इत्थे नी नाल मत करी नी नाल इस तरीके नाल गाया जाता है। अखीरला जिहड़ा शब्द है नी नाल उसदे नी जिहड़ा है नाल अखीरला शब्द है उहदे तो सैकंड लास्ट जिहड़ा शब्द है उहदा जिहड़ा अखीरली वर्ण है उसदे उत्ते हेक लाई जाती है। इत्थे नी दे उत्ते हेक है जो लगदी है। इत्थों इस तो पता लगता है भाई होर भी है ते कोई थोड़े ज्यादा बोल्ड सी इस कारण शामिल नहीं किए गए। ये थोड़ा ठीक लग्या मैं अधिकतर बोल्ड किस्म के होंगे। ते अगे आपां गल करिए छंद परागा पे 5 नंबर छंद परागा। छंद परागे आइए जाइए छंद बड़े सोहने होने ब्याह के मौके ते गाए जाते हैं। लोक काव्य के खुले रूपों में अगली वरंगी छंद परागा दी है भाई। इस दियां 2 तुक्कां हुंदियां ने जिन्हां विचों पहली निश्चय ही रूढ़ तुक पहली निश्चित ही रूढ़ तुक दूसरी लोड़ अनुसार सिरजी जाती है। छंद परागे का बाहरला रूप निक्की बोली सलोक दोहरे हेरे वर्गा हुंदा है पर अंदरला स्वरूप वखरा है। हेरे का अंदरला स्वरूप वखरा है काम उत्तेजना तो संबंध किसी को संबोधन करना। छंद परागे का अंदरला स्वरूप है जिहड़ा वो वखरा है भाई। ये विआह नाल संबंधित काव्य रूप है। जदों कुड़ियां लाड़े नाल हासा मखौल करदियां ने उस नूं अंदर सद लैंदियां ने तां उस समय वो लाड़े नूं छंद सुणाउण लई कहंदियां ने ते फिर उस नूं जवाब दिंदियां ने। अगों फिर जवाब भी दिंदियां ने। पहला आप छंद उचारदियां ने फिर उस लाड़े नूं कहंदियां भाई तू छंद गा उसदा जवाब दे। जब पहली तुक रूढ़ तुक है छंद परागे आइए जाइए छंद परागे केसर सास्ता मेरी पार्वती सोहरा मेरा परमेसर। ये जिहड़ा है छंद दा स्टाइल सीगा और पहली तुक सी जिहड़ी ओ रूढ़ सीगी भाई छंद दी। अगर है छंद परागे आइए जाइए छंद परागे तुमा सभे सालियां सोहणियां मैं कहंदा मूंह चूमा। ते संबोधन दे विच भी कई बार हो सकता है भाई ते ओ कोई यानी कि अगों तेरे जवाब भी दे सकती है। परंतु मैन जिहड़ी हैगी है जिहड़ा छंद परागा है वो सालियां विआह दे मौके ते अपने जीजे नूं गाई जांदियां और फिर उहदे तो छंद सुणदियां है। फिर जीजा जीजे दे नाल जिहड़ा बॉडीगार्ड हुंदा है वो फिर उहनां नूं छंद सुणाउंदा है। फिर अगे सालियां भी जवाब दिंदियां छंद दे रूप दे विच ही। इस तरीके नाल ठट्ठा मखौल हासा चलदा रहिंदा है भाई। ये जिहड़ा छंद सुनने सिठणियां सुननियां ये अज तो पहले दे जिहड़े विआह हुंदे सी 25-30 साल पहला ये बहुत होया करदा सी क्योंकि लोकां दा सुभाਅ ही जिहा सीगा भाई वो ज्यादा गुस्सा एक दूजे की गल का नहीं मनाया करते सी। उस समय थोड़ा खुला खिलासापन ज्यादा सीगा ते छंद सिठणियां वगैरह गाइयां जांदियां सी। परंतु अजकल के समय दे विच आ चीज़ां नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। हुण इन्हां ने था डीजे वगैरह ले लिया लोग डीजे लाते नचते रेडीमेड कम सारा। अगली है जी सिठणी। सिठणी या सिठणियां बहुवचन कहने सिठणियां। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਭਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਸਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ वे तू काला प्यो दा साला वे काला किस गुणे मेरा माओ गई गोला हेठ महीना सी जेठ सी मैं माओ दे पेट काला इस गुणे भाई जेठ दा महीना सी इस कारण मैं काला हो गया। तो इस तरीके नाल जिहड़ियां ये सिठणियां ने वो गाइयां जांदियां ने। कुड़ी वाले धिर वाले मजाक करते हैं भाई मुंडे वाले धिर दे नाल। ते अड-अड तरीके दियां सिठणियां गाई जांदियां। एक होर आपां एग्जांपल लैंदे हैं। छज ओले छाननी परात ओले तवा नानकियां दा मेल आया
सूमा दा रवा यानी उन्होंने ठिठ की है किस तरीके नाल खादे सी लड्डू जम्मे सी डड्डू फलाने का नाम लैके नी हरदीप तेरिया नानकियां नवल तेरिया नानकियां इस तरीके एक मजाक ठिठा वगैरह है ठिठ चलती रहती है। ब्याह वेले ब्याह वेले ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨੀ व्यंग ਤੇ ਟੀਚਰ ਭਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਣੀ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਗੀਤ। ਖੇਡ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਗੀਤ ਨਾਚ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੀ ਹੈ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਖੇਡ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਚ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। खेल गीत नाच गीत के अंदर खेल गीत खेल तो संबंधित है, नाच गीत नाच तो संबंधित। हुण अगे भी खेल गीत ते नाच गीत तो बाद घोड़ियां लो घोड़ियां घोड़ियां समूहिक रूप विच गाईयां जांदियां ने। घोड़ियां जिहड़ी है मुंडे दे विआह दे घोड़ियां होगी, घोड़ियां मुंडे दे विआह दे दिन तो विआह दे दिन बने उस तो कुछ दिन पहला गाईयां जांदियां घोड़ियां को। घोड़ियां गाउण समय बाकी सवारियां किसी तिखी या उच्ची सुर वाली दे बोल विच बोल मिलाउण दा यतन करदियां ने। जे कोई कुड़ी अपनी इच्छा अनुसार गीत विच कोई रद्दो बदल करना भी चाहे लोक समूह उन्हें प्रवान नहीं करेगा क्योंकि बंद बजवा लोक काल रूप है। इनका निश्चित जी बनतर हैगी है उस दे विच रद्दो बदल की संभावना नहीं होंदी। मुंडे वाली धिर विआह के समय मुंडे वाली धिर जिहड़ी गीत गाउंदे ने वो घोड़ी गीत हुंदा है। इस विच मुंडे तो संबंधित मुंडे की आर्थिक स्थिति तो संबंधित उसके परिवारक उनके परिवार तो संबंधित जिहड़े है विषय के उत्ते आ गीत गाए जाते हैं। घोड़ियां अगे जी घोड़ियां ते सुहाग जिहड़ा गीत हैगे वो अपने 9वीं क्लास के अंदर काफ़ी दे रखे है। घोड़ियां ते सुहाग तुसीं उत्थे वेख सकते हो। भाई घोड़ियां ते सुहाग बारे काफ़ी कुछ है जो दिता गया है। इस कारण और इस तो पहला भी मैं लगता घोड़ियां और सुहाग वाला आपां चैप्टर कराया होया है, तुसीं उत्थे जाके देखियो। घोड़ियां ते सुहाग बारे मैं विस्तार नाल पाया होया घोड़ियां ते सुहाग बारे लोक साहित्य रूप दे अंदर। तां इस कारण की है कि इत्थे संक्षेप दे विच लग रही है क्योंकि विस्तार तुसीं उत्थे वेख ही लओगे। सुहाग गीत की है बजवे काव्य रूप की एक होर विनंगी सुहाग गीत है जो विआह तो कुछ दिन पहला कुड़ी वाले घर गाए जाते हैं। इन्हां विच घोड़ियां वांग ही रद्दो बदल की बहुत घट संभावना है। समूहिक तौर पर गाया जाता है। कुड़ियां का समूह है जो इसका गायन करदियां ने। इस दे अंदर जिहड़ियां कुड़ियां दीयां सदरां इच्छावां ने वो सब इस दे अंदर आउंदियां ने। भाई सुहाग दे अंदर आउंदियां ने ते सुहाग जिहड़ा लोक गीत का जिहड़ा सैकंड ग्रेड च अपने पाया होया सीगा वो मैं इसके अंदर पा दूंगा ताकि तुसीं उहनूं चंगी तरह वेख लिओ और उत्थे विस्तार नाल जानकारी उहदे विच दित्ती हुई है उत्थे तुसीं वेख लिओ। वैसे अंतर मैं इत्थे दस देना जिहड़ा घोड़ियां है वो मुंडे वाली धिर मुंडे का जो विआह होंदा है मुंडे वाली धिर जिहड़ी गाउंदी है वो घोड़ियां और सुहाग है कुड़ी वाली धिर। कुड़ी वाली धिर जिहड़ियां गीतां गांदियां वो सुहाग है। भाई इस ते कुड़ी वालियां कुड़ियां तो संबंधित होंदे है वो चंगा जीवन जाच होंदी वो हो गई चंगा खुश रवे उहदी आदत तो संबंधित तो जीवन जात तो संबंधित है और ये मुंडे तो संबंधित है। सुहाग दे विच अगले अगले मुंडे घर बारे भी दसिया होया हो सकता है क्योंकि उहदे सुपने उहदा सब कुछ इहदे अंदर वर्णन होंदा है। अगे है दुबड़ा। दुबड़ा लंबी धारणा वाला निक्का गीत है जो मर्दां विच प्रचलित है। अवतार सिंह दलेर का मत है कि दोहरे विच पहली तुक दे बचदे भाव नूं
दूजी तुक राही लशकाया जाता है, इसलिए इसका नाम दोहरा है। दोहरा भी दो ही तुकां होंदियां इस दे अंदर, कोई दोहरा है भाई ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੜਾ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੰਦ ਚਾਲ ਦੋਹਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਲੰਮੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਅਜੇਰਾ ਸਰੋਦੀ ਗੀਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਵਕ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਧਾਰਨ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਭਾਵ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਸਰਬਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। और उस तो बाद 12वां भी 12वां वही 12वां है भाई, 12 महीनों तो संबंधित। इस 12 महीनों को आधार बना के कविता रची जाती है। इस काव्य रूप एक बिरहन जिहड़ी औरत है उनकी मानसिक पीड़ा दर्द का वर्णन होता है। विक्रमी संमत है जिहड़ा उसके 12 महीने है, चेत विसाख जेठ हाड़ सावन भादो असू कतक पो माह, ये जिहड़े हैगे है। हर महीने के अंदर वो इस्त्री जिहड़े सुख दुख पीड़ा दर्द हटाउंदी है उसका वर्णन है। उनके हिजर दीयां गल्लां, उनके वसल दीयां गल्लां इस दे विच है। और हर एक महीने के अंदर प्राकृतिक वर्णन है जिहड़ा वो पिठ भूमि च है। प्रकृति वर्णन पिठ भूमि के अंदर है। हर एक महीने दे विच संदर्भगत करते हुए उस प्राकृतिक माहौल नूं, उस स्त्री ने जो पीड़ा है, जो उनका वियोग है, उस नूं बयान किया जाता है। ये 12वां लोक का रूप है। थिथी थिथी बई चंद्रमा के वधन घटन नाल निरपक्ष चानण पक्ष, जिन्हों आखते हैं सुधी वधी दियां तिथां अथवा तिथां लैके जिहड़ी कविता उचारी जाती है उस नूं थिथी कहा जाता है। थिथ थिथ होंदी है एकम दूज तीज चौथ पंचम एवें करके 15 तक, फिर पूर्णमासी आ जाती है, फिर दोबारा चल पैंदी है एकम, फिर मस्या आ जाती है। नेर पक्ष चानण पक्ष ये चंद्रमा के साधन चलता सिस्टम। चंद्रमा के वधन घटन नाल जिहड़ा निरपक्ष ते चानण पक्ष होंदा है, एक एक तरीक है, पहल दूज एकम दूजम तीजम तेरस चौथ, और फिर उसके बाद पूर्णमासी आ जाती है, मस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस कविता राही बयान किया जाए। एक एक दिन में जो कविता राही बयान किया जाता है तो उसनूं थित कहा जाता है, थिथी कहा जाता है। भाई आगे किकली भाई अज खेड गीत बच्चों ने गीत किया सीगा, उस दे विच आ गया भी किकली। तुसीं कई कुड़ियां ने तां गाया होना बई किकली किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा पारे जाई दा सोहना मूंह जवाई दा, इस तरीके नाल गाया होना बई किकली बाल अवस्था विच गाया जाने वाला लोक काव्य रूप है। खुशी विच नसदियां गाउंदियां छोटियां कुड़ियां जदों आपस विच हत्थां दी करिंगड़ी पांदियां एवें और ऐ करके बई, फिर दोनों कुड़ियां ने दूजे पासे भी बच्ची है और इधरले पासे दोनों बच्चियां ऐ करके और फिर ऐ करके गोल चक्कर कटदियां ने और नाल नाल गाउंदियां ने किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी सीसा मेरी भागो दा रुमाल मेरे वीर दा। इस तरीके गा तो गा लंबा गीत है ते मैं कोई चंगा गीतकार नहीं वरना गा के सुनाएगा। इस तरीके ये जिहड़ी है वो किकली है। अगे है लोरी भाई 14 नंबर लोरी। सबने लोरियां सुनिए, लोरियां सुन के बच्चा सो जाता है। भाई आपां भी अपनी मां ने आपां नूं लोरियां सुनाइयां, आपां भी हुण अपने घर बच्चों नूं लोरियां सुना के, वरना हुण लोरियां तो बंद हो गई, तो करके या फिर मोबाइल के उत्ते गाने ला के और बच्चे नूं फिर मानसिक तौर पर कमजोर बनाया जाता है। मैं तो इदा ही कहूँगा। लोरी वो अपने
बच्चे नूं मां है जिहड़ी गोद विच लैंदी है, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਸੋ ਜਾ ਬਲਿਆ ਸੋ ਜਾ ਕਾਕਾ ਸੋ ਜਾ, ठीक है, तेरा मां ये लियावे तेरी प्यो ये लियावे। इस तरीके नाल लोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ और बच्चा गीत सुनते सो जाता है। हल्की फुल्की शब्दावली वाला मधुर गीत है। और जिवें नी वीरा मेरा क्यों रोवे सोने दी कटोरी विच मूंह धोवे, जो एक बहन अपने वीरे नूं लोरी सुणाउंदी है तो कहंदी है, एक मां अपने मुंडे नूं जदों लोरी सुणाउंदी है तो उस समय ये जिहड़ी लोरी है तुसीं सुणियां होणियां भाई, बड़ियां लोरियां है जिहड़ियां है ना, सुनिया होणियां तो लोरियां बारे उही लोरियां है जिहड़ियां आपां सुनिया होईयां, उसी लोरियां की गल है इत्थे चल रही है। हुण उस तो बाद आपां अगली गल करते हैं रुत्तां दी। रुत्तां पंजाबी जीवन विच वन सुवंता रुत्तां दी रही है। वख-वख रुत्तां हुण जिवें चौमासा चली जाता है, बरसातां दी रुत्त चल रही है, फिर अगे बसंत रुत्त होगी पई। ते इन्हां रुत्तां दा जिहड़ा बयान हुंदा है वो रुत्तां नूं काबू करके 15 है। रुत्तां रुत्त तो बस रुत्तां तो संबंधित लोक काव्य रूप जिंदे विच वख-वख जिहड़ियां रुत्तां ने, सरद रुत्त, ग्रीष्म रुत्त, बरसात वाली, बसंत वगैरह, ये सब रुत्तां दा वर्णन हुंदा है और अपनी भावनावां उहदे नाल जोड़ दित्तियां जांदियां ने। ये है रुत्तां। फिर उस तो बाद पत्तल। पत्तल की हुंदा है? पहला इन्हां दा पत्तलां दा कीता जांदा सी, भाई रिवाज सीगा, रोटी पत्तलां दे विच खाई जांदी। साउथ दे विच तां हजे भी वड्डे वड्डे पत्ते है जिहड़े उहदे उत्ते रख के चावल वगैरह बिरयानी वगैरह वो खांदे है, भाई पत्तलां उत्ते रख के। पत्ते तो बड़िया शब्द है, पत्ते तो बड़िया शब्द है पत्तल, तो इत्थों अपने कनैक्ट हो जाएगा। पत्तल पत्ते तो बड़िया शब्द है। पहला भी तुसीं वेख्या होवेगा ब्याह दे समागमां ते या फिर लंगर दे विच, भाई लंगर दे विच पहला की हुंदा सीगा कि वो पत्तियां दे वड्डे वड्डे पत्तियां दे एवें करके कटोरियां भी बणियां हुंदियां सीगियां, थालियां भी बणियां हुंदियां सीगियां ते उन्हां विच लंगर वरताया जाता सी। ब्याह के समागमां के समय भी इदां ही हुंदा सीगा कि पत्तियां उत्ते रोटी है वो खवाई जाती सी। साउथ दे विच हजे भी ये चीज चल रही है, परंतु अपने इत्थे इसदा जिहड़ा रिप्लेसमेंट आ गया है, भाई जिहड़े अपने कटोरियां रेडीमेड जिहड़ियां आ रही हैं, भाई डिस्पोजल है जिहड़े उन्होंने इहनूं रिप्लेसमेंट करता। परंतु पुराने समय अंदर की होया करदा सी कि जंज जदों जाया करदी सी तां पत्तल दे उत्ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜੰਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਝ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੰਝ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ कोई धी वाली धिर दी कोई चतुर औरत जंज बन देंदी सी, बई पत्तल बई 10 बई इस दे विच की है, ठीक है। और फिर उस बंदे नूं जंज बन देंदी सीगी और फिर उस तो बाद जिहड़े अगले जिहड़े बंदे है वो रोटी खाण तो पहला उस जिहड़ा उन्हें छोटा गीत गाया है, लोक काव्य रूप की उन्हें वरतों की है, पत्तल गाया, उसका जवाब देना होगा सी। उसने जवाब देने तो बाद ही रोटी है जिहड़ी वो खाई जाती सी। एक तरीके का रिवाज जिहा सीगा भई वो पहला जंज बनते सीगे, कोई सवाल पूछा करते सीगे गीत राही छोटे जे, और फिर उसका जवाब है जिहड़ा वो दूजी धिर रोटी खाने वाली धिर है, लाड़े वाली धिर है, वो दिया करती सी ते फिर वो रोटी खाया करती सी। जिवें कि इस प्रकार लैके नाम गोपाल दा बन्ना जंज मैं आप खोले बिना जे खाऊगा खाना देऊ सराप। अगला ने पहला एक खोलो तुलसी पूजन मैं चली 60 सहेलियां नाल जांदियो तुहानू बन दिता
ਬੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ। ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਜ ਪੱਤਲ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਜ ਛੁਡਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਜ ਛਡਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਆਈ, ਬੱਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਈ ਬੱਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਜ ਦੇਵਾਂ ਛੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਖੜਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੰਜ ਛੁੱਟ ਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸੱਦ। 17 ਨੰਬਰ ਸੱਦ ਲੋਕ ਕਾਬੂ। ਸੱਦ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਣਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੁਕਾਰਨਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। किसी को पुकारना, बुलाना, हाका मारना एक सद काव्य रूप है। इसे भावना को प्रकट करने वाला काव्य रूप सद कहा जाता है। सद हक भरिया ते गाए जाने वाला लोक गीत है। भाई किसी का हक ना सदाना पई आ जाए। इसकी शैली लोक संगीत वाली होंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच मलार राग के अंतर्गत सद काव्य रूप का नमूना मिलता है। और पीलू ने जो मिर्जा लिखे है वो भी सद काव्य रूप दे विच लिखिया है। भाई बुलाना, पुकारना इस दे अंदर आउंदा है। अगे है जी आरती। आरती वही आरती है जो लोग करते हैं भाई, लोग करते हैं वही आरती। उस्तति दा गीत आराधना लई सवेरे या शाम की जाने वाली थाली विच जोता लगा के खड़ताला घंटियां बजा के गाई जाने वाला लोक काव्य रूप आरती है। और सरदार राम फलोरी की लिखी हुई आरती ओम जय जगदीश हरे, सोमी जय जगदीश हरे, पंजाबी शायर ने आ लिखते पे बहुत वड्डी जिहड़ी आरती लिखी। लोग हजे भी इसनूं फॉलो करते हैं, गाउंदे ने। परंतु सरदार राम फलोरी इन्ना वड्डा भगत नहीं सी जिन्नी इस आरती नूं गा के वड्डे वड्डे भगत है जिहड़े वो लोग बन गए, रब नूं पा के कई लोग। परंतु सरदार राम फलोरी है जिहड़ा उन्हें तां लिखती सी बेचारे ने, ते लोगों ने बहुत लाहा खटिया, उन्हें वो खुद नहीं खट सकिया। अगे भेटा भाई 19 नंबर भेटा। भेटा वही भेटा भाई माता का लगता है भंडारा या जागण। माता तो लगता है जागण। उदों मां शेरा वाली दुर्गा मां की उस्तति लई गाया जाने वाला लोक काव्य रूप भेटा है। शेरा वाली की महिमा के आधार शक्ति और ममता का जिक्र इस अंदर होता है। शेरा वाली का आपा मंडन वो सारा उनकी उस्तति का वर्णन उनका गुणगान इस अंदर होता है। भेटा के अंदर मां शेरा वाली है तेरा शेर आ गया, इस तरीके गाते हैं। बहुत सारिया भेटावां ने वो गाइया जांदियां। लखा बड़ा प्रसिद्ध है बड़िया भेटा। कई ने जरूर अपने घरे जागरण नहीं कराया तो जरूर माता के जागरण चो गए होने हैं और बहुत सारिया माता दी भेटावां उन्होंने सुनिया होनी है, वो सारिया ही है। अगे है मंगलाचरण 20 नंबर। मंगलाचरण मंगलाचरण किसी भी कार्य विशेष ते कोई भी कार्य विशेष है पुरातन समय के अंदर जो कविसर सी गवंतरी सी वो सब तो पहला मंगलाचरण तो शुरुआत करता है। और तुसीं वेख्या होगा किस्सा काल धारा के अंतर्गत बहुत सारे किस्से ने उनकी जी शुरुआत है वो मंगलाचरण तो हुई है। वीर काल धारा के अंदर जो उन्होंने स्टार्ट किया है मंगलाचरण तो किया है। कोई भी
ਗਵੰਤਰੀ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ परमात्मा ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਵੀ ਸਰ ਗਵੰਤਰੀ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਉਸਤਤਮਈ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆਖਦੇ। ਵਾਰਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ। ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 21 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਵਾਰਾ। ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਵਾਰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗਤੀ ਦਾ ਜਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਸ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ। ਪਰੰਤु ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਦੋਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਈ 9 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 22 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਢੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਗਾਣਗੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਛਾਣੇ ਬਾਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ, ਕੋਰੜਾ, ਦੋਹਰਾ, ਕਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਅੰਦਰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਢੱਡ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਥੋੜ ਸਮਝਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਾੜੇ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ